السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، آج ہم کو جاننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی محبت کرتے ہیں ان سے، آج ہم کو پتہ چلے گا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنایا، یعنی کہ نماز لے کر آئے، جب معراج پر گئے نماز لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ہمارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور راتوں کو رویا کرتے تھے۔ اب سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز ہم سب کی سفارش کریں گے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے، یہ ان کی ہم امت میں ہیں، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور آج ہم ایسے ہو گئے کہ ہم کو بالکل ہی پرواہ نہیں کہ ان کے طریقے پر چل جائیں۔ آج ہم نوجوان لڑکے ایسے ہیں کہ داڑھی کٹوا لیتے ہیں، ان کا طریقہ اپنانے کو تیار نہیں۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن ان کی سنتوں کو اپنانے کو تیار نہیں۔ ہم جو ہیں کھانا پینا، سونا، لیٹنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہمیں یہ طریقے مطلب کیا ہے اللہ کے رسول کا طریقہ، کیسا کرنا چاہیے، ہم کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ آج زندگی گزار رہے ہیں اپنی مطابق جیسا ہماری زندگی چل رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی مطابق گزارنے کو تیار نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نمازیں پڑھتے تھے، کیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں؟ راتوں کو عبادت کرتے تھے، اور دعائیں کس کے لیے کرتے تھے؟ ہمارے لیے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے ہم کتنی محبت ان سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کون ہیں؟ اللہ کے رسول وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا۔ اب سوچو کہ جن کے لیے پوری کائنات بنی وہ ہمارے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ ہیں جو معراج پر گئے۔ اللہ کے رسول وہ ہیں جن کے لیے پوری کائنات بنی۔ اب ہم کو یہ چاہیے کہ ہم جیسے اللہ کے رسول ہم سے محبت کرتے تھے، ہمیں بھی محبت کرنی ہے ان سے، ہمیں بھی ایسے ہی اللہ سے محبت کرنی ہے جیسے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور نبی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ مکے میں جب کفار نے آپ پر ظلم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ہجرت کو کہا، تو وہاں پر ایک مکان میں بیٹھ کر ان کفار میں جو سب سے بڑے سردار تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم آج صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ محمد کو قتل کر دیں گے، رات کو ان کا گھر پہ جائیں گے، استغفر اللہ، ان کو قتل کر دیں گے۔ ان کفاروں نے یہ مشورہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ مدینہ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ مدینہ چلے جائیں۔ تو جب آپ کو شب ہوئی یعنی کہ رات ہوئی، رات کے وقت آپ گھر پر ہی تھے، تو کفار جو تھے یعنی کہ کافی لوگ جو تھے انہوں نے آپ کے گھر کو آ کر گھیر لیا۔ جب انہوں نے آپ کے گھر کو آ کر گھیر لیا تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں سے چلے گئے، اور اللہ کے کرم سے آپ کسی کو دکھائی نہیں دیے، اور آپ غار ثور میں پہنچ گئے، یعنی کہ وہاں پر جا کے چھپ گئے۔ جب یہ کفار جو تھے آپ کے گھر پر پہنچے، وہاں پر جا کر اندر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں ملے، تو آپ ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ تو کفار لوگوں نے کیا کرا کہ انہیں ڈھونڈتے وہیں پہنچ گئے جہاں پہ غار ثور تھی، یعنی کہ اس غار میں پہنچ گئے، اور ان کے پہنچنے سے پہلے مکڑی نے وہ باہر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے تو مکڑی نے باہر جالا بن لیا، اور کبوتر کے جوڑے نے آ کر وہاں پہ انڈے دیے۔ جب وہاں پر کفار پہنچے اور کفار نے اس غار کو دیکھا، اور جب غار کو دیکھا اور سوچا کہ یہ غار جو ہے یہ تو بند ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا، تو پھر آپ وہاں پر چھپے، اس کے بعد آپ مدینہ چلے گئے تھے۔
जब आप मदीना पहुँचे वहाँ के लोगों ने आपका इस्तकबाल किया। ये सोचिए कि अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। आज हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नबी की वजह से गुजार रहे हैं, वरना आज हम कुत्ते बिल्ली होते हैं। यानी कि हमें कुछ पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, और कौन से काम करना चाहिए, कौन सा नहीं, कौन सी हलाल है, कौन सी हराम है, हमें कुछ नहीं पता होता। हम अपने मलबूते पे ज़िंदगी गुजारते अगर अल्लाह के रसूल हमें ये चीज़ें नहीं बताते। अब हमें अल्लाह के रसूल इंसान बना कर गए, हमें ये चीज़ें सिखा कर गए, तो हमें भी चाहिए जैसे कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं हम भी उनसे मोहब्बत करें। अगर हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल हमारी सिफारिश कराएंगे। आज हम दुनिया वालों से मोहब्बत करने को तैयार हैं, आज हम जो फिल्म स्टार होते हैं उनसे मोहब्बत करने को तैयार हैं, आज हम अपने घर वालों से मोहब्बत करने को तैयार हैं जो हमें सही चीज़ें, सही राह यानी कि अल्लाह की तरफ रास्ता दिखाता है। यानी कि सारी चीज़ें दुनिया में जो हो रही हैं उनको अच्छी तरीके से समझा गए, हम उनसे मोहब्बत करने को तैयार नहीं। जो बुरे रास्ते पर लेकर चलते हैं हम उनसे मोहब्बत करने को तैयार हैं। हाँ, जो हमें अपनी अच्छी लगती हैं हदीसें, यानी कि हम उस पर अमल करते हैं, और जिसमें हमारा लगता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा हम उस हदीसों को नहीं मानते। तो ये सोचो, जब अल्लाह के रसूल इतनी हमसे मोहब्बत कर रहे हैं तो हमें भी तो इतनी मोहब्बत करनी चाहिए जब हमारे लिए वो तकलीफ़ें उठा सकते हैं। आप सोचो कितनी मोहब्बत है। जब कुफ़ार लोग आपको परेशान करते थे, यानी कि आपको तकलीफ़ें दिया करते थे, लेकिन आप फिर भी उनके लिए कोई बद्दुआ नहीं दिया करते थे, आप उनके लिए कोई बद्दुआ नहीं करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। हम सबको मोहब्बत देखनी है। मोहब्बत कैसी करनी चाहिए अल्लाह के रसूल से? तो हमें ज़िंदगी जो देखनी पड़ेगी वो सहाबा इकराम की ज़िंदगी देखनी पड़ेगी कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कितनी की और मोहब्बत कैसी की। मोहब्बत ऐसी की कि अब मोहब्बत ऐसी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब आपकी वफ़ात हुई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं, अगर किसी ने कह दिया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, मैं उसकी गर्दन कलम कर दूंगा। और हज़रत बिलाल ऐसे खड़े हैं जैसे उनके अंदर जान नहीं, और पूरे मदीने में गम का साया हो गया। अब देखो कितनी मोहब्बत करते थे वो। हज़रत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया आपकी मोहब्बत में कि जब अल्लाह के रसूल ही नहीं रहे तो यहाँ पर मेरा क्या काम। और आज हम उस गुनाह को छोड़ने को तैयार नहीं जो हमारे नबी बता कर गए हैं कि ये गुनाह है, इसको नहीं करना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराज पर गए, मेहराज से वापस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे उन्होंने दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी फजर की। जब आपने दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, जब आप नमाज़ पढ़कर वापस आ रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रास्ते में एक शख्स मिला और कहने लगा कि ए अबू बकर, आज तो तुम्हारे वो जो हैं, देखो आज तो तुम्हारे वो जो हैं, उन्होंने कहा वो कौन? उन्होंने क्या, तुम्हारे जो मोहम्मद हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज तो उन्होंने कहा क्या बात कही उन्होंने कहा आज तो वो कह रहे हैं कि मैं 7वें आसमान पर गया, अल्लाह से मुलाकात हुई, अल्लाह से बात हुई। तो वो कहने लगे कि सच में अल्लाह के रसूल ने यही कहा है कि 7वें आसमान पर यानी मेहराज पर गए? तो उन्होंने कहा जी हाँ, तुम्हारे मोहम्मद यही कह रहे हैं कि मेहराज पर गए हैं, कि वहाँ पे मैंने अल्लाह से बात करी है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं। देखिए उन्होंने अल्लाह के रसूल से भी मालूम नहीं किया, ना किसी और सहाबा से मालूम किया। एक कौन बता रहा है, काफिर बता रहा है कि तुम्हारे मोहम्मद ने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने फिर भी यकीन कर लिया कि मोहम्मद ने कहा है तो सच कहा होगा। और जब वहाँ से वापस आए थे फजर के बाद, आपने जब लोगों को बताया तो लोगों ने कैसे कैसे सवाल उठाए आपसे ये मालूम किया। आपने कहा कि मैं मस्जिद अक्सा गया, यानी कि मस्जिद अक्सा में मैंने नमाज पढ़ाई। आपने मस्जिद अक्सा में गए हैं तो कफ़ार क्या कहते हैं कि ये बताओ मस्जिद अक्सा में कितनी पैड़ियाँ हैं। अब बताओ, अगर हम दिन में कई बार जीने पे अपने चढ़ते हैं उतरते हैं, कभी हम पैड़ी गिनते हैं? तो वो क्या कह रहे हैं, बताओ कितनी पैड़ियाँ हैं। अल्लाह की शान कि अल्लाह ताला ने सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पैड़ियाँ बना दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 2 3 4 5 करके ऐसे गिन ली, तो आपने बताया कि इतनी पैड़ियाँ हैं। तो फिर कहने लगे कि अब बताओ कि आप सच में मस्जिद अक्सा गए हैं, तो आप ये बताओ
کہ मस्जिद अक्सा में ताक कितनी हैं, यानी कि ताक जिसमें कलाम पाक रखे हुए होते हैं, जैसे मस्जिद में जाते हैं एक ताक बनी हुई होती है, उसमें कलाम पाक रख देते हैं, वो ताक कितनी है। आप में अगर मस्जिद अक्सा में पहुँचे हैं तो अब बताओ, कोई ताक गिनता है? हम मस्जिद में कितनी बार जाते हैं, कभी हमने गिनी है कि एक मस्जिद में, इस मस्जिद में कितनी ताक है, कितने कलाम पाक रखे? नहीं गिनता कोई भी। अब अल्लाह की शान देखिए, फिर अल्लाह ताला ने सामने ताक बना दी मस्जिद अक्सा की। आपने गिनी 1 2 3 4 5 6 7, इतनी ताक है मस्जिद अक्सा में। जैसा कि उन्होंने अल्लाह ताला ने कैसा दिखाया, जैसे कि सामने आप हमें देख रहे हैं, यानी कि जैसे मोबाइल में वीडियो चल रही है, ऐसे एक तरीके से वीडियो बना दी सामने कि उन्होंने एकदम एकदम गिन ली। तो देखिए ये साहबा इकराम एक काफिर ने बताया कि आपके नबी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी यकीन कर लिया। वो साहबा इकराम कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे, जो आपने कहा आप उसको पूरा कर दिया करते थे। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि वो साहबा इकराम कितनी मोहब्बत करते थे कि हज़रत अबू ज़र और हज़रत बिलाल जब दोनों दुआएं मांग रहे थे, क्या हज़रत अबू ज़र ने कहा कि अल्लाह के रसूल का साथ मुझे जन्नत में भी देना। तो हज़रत बिलाल ने क्या जवाब दिया था कि अबू ज़र, तुमने ऐसा कौन सा अमल कर लिया जो तुम अल्लाह के रसूल के साथ रहना चाहते हो? अब हमारे अंदर कोई अमल ऐसा, अब देखिए उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा कौन सा अमल कर लिया जो तुम अल्लाह के साथ रहना चाहते हो, यानी कि हम इतने गुनाहगार हैं, हम इतने बदकार हैं, और तुम कह रहे हो कि अल्लाह के रसूल के साथ रहना है मुझे जन्नत में। और आज हमारा हाल ऐसा है कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हम कुरान नहीं पढ़ते, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत उस पर अमल नहीं करते, जो आप कहकर गए हैं हम वो चीज़ पे फॉलो नहीं करते। अब हम क्या कहते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात है कि मरने के बाद अल्लाह के रसूल बख्शवा लेंगे। वो साहबा इकराम जो अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत करते हैं, अब सोचो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के रसूल ने कहा उससे अमल करते थे, और आज हम जो अल्लाह के रसूल कहते हैं उससे उल्टा ही करते हैं, अमल नहीं करते हैं। और हम कहते हैं वो अमल करने के बाद भी ये कहते हैं तुमने ऐसा कौन सा काम कर लिया जो हम अल्लाह के रसूल के साथ रहेंगे वहाँ पर, और हम अमल नहीं करते फिर भी ये कहते हैं अल्लाह के रसूल बख्शवा लेंगे। तो हम सब को क्या चाहिए, क्या हम अल्लाह के रसूल को पकड़ लें, यानी कि उनकी सुन्नतों को अपना लें, तो क़यामत के रोज़ जब ही अल्लाह के रसूल हमारी सिफारिश कराएंगे। दुनिया में तो भाग रहे हैं हम बड़े बड़े लोगों के पीछे, यानी कि जो लोग दुनियादारी में हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, अल्लाह के रसूल को भूले बैठे हैं, क़यामत के रोज़ के लिए इंतज़ार में बैठे हैं कि अल्लाह के रसूल बख्शवा देंगे हमें। अगर हम सबको ये ध्यान रखना है कि अल्लाह के रसूल हमें बख्शवा लेंगे, तो हमें कुछ ऐसे काम भी करने होंगे जो अल्लाह के रसूल को पसंद आए। काम तो हम ऐसे कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं आए, और कोशिश कर रहे हैं कि वो बख्शवा लें, तो उनको राज़ी भी तो करना है। अब वो राज़ी कैसे होंगे, जब उनका तरीक़ा अपनाएंगे, यानी कि इबादत जो करेंगे हम उनके तरीके पे इबादत करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे। अगर अल्लाह नाराज़ तो अल्लाह के रसूल कैसे राज़ी हो जाएंगे? अगर अल्लाह के रसूल नाराज़ हैं तो फिर अल्लाह कैसे राज़ी होगा? तो इसलिए राज़ी हमें दोनों को ही करना पड़ेगा। तो इसलिए राज़ी करना कैसे है? इबादत करके, और इबादत करनी कैसे है? अल्लाह के रसूल के तरीके पे, जैसे अल्लाह के रसूल का तरीका है। तो इसलिए हमें छोटे छोटे अमल करने चाहिए। अब तो हालात ऐसे चल रहे हैं कि हम ये ना सोचिए ये सुन्नत छोटी है, इसको करने से कुछ गुनाह नहीं मिलेगा। हमें छोटी छोटी सुन्नतों को भी अपनाना है, क्योंकि आजकल का माहौल जो चल रहा है, यानी कि गुनाहगारी जो बढ़ गई है, हम सबको ये चाहिए कि छोटी छोटी सुन्नत को भी ना छोड़े। तो इसलिए हम सबको अल्लाह ताला सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक्त नमाजी बना दे। अल्लाह हमसे जो गलती हुई है उसे माफ़ फरमा दे। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।